Hello everyone. Okay, till now we already discussed law of inertia, Newton first law. Okay, application of or some examples of Newton's first law. Okay, after that we see Newton's second law. Okay, and demonstration of Newton's second law. After that we discuss Newton's third law. Okay, momentum, impulse, and law of conservation of momentum. Okay, so theory part of this chapter is completed, and we already discussed numerical based on what momentum. Okay, Newton's second law, impulse. Okay, only one topic is left, that is numericals based on law of conservation of momentum. Okay, so today we will discuss some numericals. Okay, after that we will discuss miscellaneous questions also. Okay, if you have any problem, okay, you can ask me. So let's start the question. Of two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Full stop. They collide, and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. Okay, so see what question in the questions it is saying there are two objects, any objects. Suppose this is two objects, okay, of masses, means m1 is equal to 100 gram and m2 is equal to 200 gram, are moving along the same line. Okay, and okay, with velocities of 2 meter per second, 2 meter per second and 1 meter per second. Okay, got it? They collide. Okay, यहाँ पे वो collide कर जाते हैं. Okay, so this is A and this is B object. This is FAB. This is FBA. Okay. After the collision, the first object, means this m1 is moves at a velocity of 1.67, means v1. This is v1. Okay, you have to find the velocity of second object, means you have to find v2. Here this is m1 v1, no, u1. Okay, initial velocity of object A, and this is initial velocity of ऑब्जेक्ट बी. यूए कर लो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, यूए एंड यूबी. ठीक है, अब सही है. ठीक, या फिर हम u1 और u2 भी कर सकते हैं. ठीक है, u1 u2 भी कर लेते हैं, वो ज्यादा भी अच्छा रहेगा. गॉट इट? ठीक, सो the initial velocity of object A, that is u1, that is equal to 2 meter per second, and initial velocity of object B, that is u2, that is 1 meter per second, and the mass of the first object, that is 100 gram. Okay, and the second one is 200 gram. After collision the velocities are changed, that v1 is equal to 1.67 meter per second. Okay, now let's let the velocity of the what of the second object after collision, and that is equal to v2. ठीक है, और वही हमको निकालना है. ठीक है, after collision that is equal to v2, and what the total momentum of two object. अब total momentum निकालते हैं. The total
momentum of two objects before collision, that is equal to what? m1 u1 plus m2 u2. Put the values of these. That is m1 100 gram into 2 meter per second, okay, plus m2, that is 200 gram into u2, that is 1 meter per second, and this will become 200 plus 200, that is equal to 400 gram, ओके, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया क्या? बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, ओके, after collision, and that is equal to what? m1 v1 plus m2 v2, m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, हम यहाँ से वैल्यू करते हैं। m1 that is equal to 100 gram, 100 gram into v1 that is equal to 1.67 meter per second plus m2 200 gram into v2। ठीक है, नाउ अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? ठीक है, पूरे सिस्टम का, ओके, बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का सम इक्वल होगा किसके? किसके? मोमेंटम ऑफ व्हाट? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फॉर द law of conservation of momentum, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, सो अब वैल्यू बताइए हमको। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 167। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 167, ओके, ग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 200 gram into V2 is equal to 400 gram मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 इज इक्वल टू 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस 167 ग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन 200 ग्राम। विजिबल? ओके, नाउ इसको 400 माइनस 167 करेंगे तो कितना आएगा? 233 ग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन 200 को हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो 2 इंटू 100 कर दे रहे हैं इंटू ग्राम। ओके, कैंसिल आउट, ये 2 इन 2, 2 इन 2, ओके, 2 6 12 और ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 100 है नीचे 1.16 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हम लिख सकते हैं thus the velocity of the second object after collision
after collision will be 1.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है? ओके, सो ये था सॉल्यूशन, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। Wait, I will now come to the second question. Okay, see, the question is two toy cars A and B are moving towards each other on a horizontal surface. Okay, the car A has mass of 60 gram and moves towards the right with a speed of 60 centimeter per second. Okay, the car B has a mass of 100 gram and moves towards the left with a speed of 20 centimeter per second. Okay, the two cars collide and get stuck to each other. With what velocity will they move after collision? Okay, I think you understand the question. Let's see one more time. Two toy cars A and B. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये दो टॉय कार है, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के तरफ ये बढ़ रहे हैं, ठीक, लाइक दिस। ओके, फिर क्या कह रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक, द कार ए हैज अ मास, कार ए हैज मास ऑफ 60 ग्राम, इसका जो मास है वो 60 ग्राम है, एंड मूव्स टुवर्ड्स राइट, ये मान लेते हैं राइट जा रहा है, ठीक, विथ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है, देखो यहाँ स्पीड दिया हुआ है, ठीक, लेकिन हम वेलोसिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है टुवर्ड्स द राइट, बट इट, तो यहाँ से मान लेते हैं v1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका आंसर जो है ना सीजीएस में ही ले आना है, ठीक, मेंशन नहीं किया है कि एसआई यूनिट में लाना है, तो हम इसका आंसर सीजीएस में ही निकालेंगे और उसके बाद हम दोनों में लिख सकते हैं, सीजीएस और एसआई दोनों में, गॉट इट, ठीक है। देन द कार बी हैज अ मास ऑफ, कार बी का जो मास है ये मान लेते हैं m1 है, दिस इज m2, दैट इज 100 ग्राम, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, विद द स्पीड ऑफ v2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब क्या होता है, द टू कार कोलाइड, ठीक, इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों कार क्या हो जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, ठीक, ऐसे आमने सामने से लड़ गए ये, ठीक है, हमारे जो कार है इधर चल रहा था, इधर चल रहा था, एंड दे व्हाट कोलाइड एंड गेट स्टक, मतलब लड़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं टू ईच अदर। अब जब ये चिपक जाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब या तो राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, अब ये कौन सी वेलोसिटी, मान लेते हैं कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी से चलने लगे, ठीक, तो हमको वही निकालना है। ओके, सो लेट अस टेक द डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, मैंने राइट डायरेक्शन को क्या मान लिया है, इस साइड जो गई इसको मैंने माना पॉजिटिव, ओके, और लेफ्ट को मैंने माना क्या, नेगेटिव, ठीक। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ कार ए, ये कार ए है और ये कार बी है मान लेते हैं, ठीक। सो द लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ कार ए बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ car A
before collision is equal to, suppose ये है P1 and that is equal to M1 V1 and M1, what is the value of M1? 60 into V1, 60 पूरा लिख देते हैं, 60 ग्राम into V1 that is 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ओके, अब द मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन, उसका क्या होगा भाई? मान लेते हैं P2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट को क्या माना है? माइनस, गॉट इट, माइनस M2 V2 एंड दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन स्टूडेंट, ओके, 100 ग्राम इनटू वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस यहाँ कर लो, माइनस 2000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन, वो क्या हो जाएगा भाई? P1 प्लस P2 एंड दैट इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब वैल्यू रखते हैं, दैट इज इक्वल टू M1 V1 3600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा प्लस में होगा 1600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, सो ये आ गया क्या? कोलिजन से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ था? द टू कार्स गेट स्टक टू ईच अदर एंड मूव टुगेदर। ओके, मैंने मान लिया लेट द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन बी v। ठीक है, कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी कितनी थी? v, जब ये क्या हो गया? स्टक हो गया। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम of A and B after collision, okay, and that is equal to, ठीक, वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, मतलब M1V प्लस M2V, गॉट इट। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे M1 और M2 की, एंड M1 इज 60, ओके, 60V प्लस M2 कितना आ गया? M2, हाँ यहाँ पे 100V एंड दैट इज इक्वल टू 160V। मोमेंटम क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन। ठीक, अब हमको पता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, देख सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऑफ मोमेंटम। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? हम यहाँ से डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एंड दैट इज इक्वल टू 1600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये 160 बेटा ग्राम कर लेना है, ठीक है, 60 ग्राम है और ये 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक, तो ये हो जाएगा 160 ग्राम इंटू वी। ठीक, अब यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? ठीक, ग्राम ग्राम कट गया, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो पॉजिटिव आया आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक, पॉजिटिव आया है। एज v कम्स आउट बी पॉजिटिव द कार्स मूव टुगेदर टू राइट, ठीक है, एक कोलिजन के बाद किधर जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, गॉट इट, आई थिंक गॉट इट।
दिख रहा है ना? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, एज वी comes out to be positive, okay, to be positive, I think दिख नहीं रहा है, हाँ, to be positive, okay, the cars moves together, the cars moves together towards the right, towards the right, ठीक है, towards the right, okay, got it, ठीक है, ठीक। सो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। ओके, और जो बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ थैंक यू।